السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع میں ہوئی غیر موسمی بارش نے کسانوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تیز آندھی اور بارش کے باعث خریداری مراکز پر رکھے گئے دھان کے انبار تر ہو گئے۔ اگرچہ کسانوں نے دھان کو بچانے کے لیے تارپولین سے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن تیز ہواؤں اور شدید بارش کے باعث ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ بارش کے پانی کے بہاؤ سے دھان مکمل طور پر گیلی ہو گئی، جبکہ کچھ مراکز پر کٹائی کے بعد بوریوں میں بھری گئی دھان بھی وقت پر لوریوں کی عدم دستیابی کے باعث پانی میں بھیگ گئی۔ کسانوں نے مطالبہ کیا کہ بھیگی ہوئی دھان کو بھی اقل ترین امدادی قیمت پر خریدا جائے اور آئندہ اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے وقت پر لوریوں کا بندوبست کیا جائے۔ کسانوں نے خریداری مراکز پر احتجاج کرتے ہوئے حکام پر الزام لگایا کہ ان کی لاپرواہی اور وقت پر مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا۔ مقامی کسان تنظیموں نے بھی اس صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر فوری اقدام نہ کیا گیا تو بڑے پیمانے پر زرعی بحران جنم لے سکتا ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں آیا، تاہم کسان مطالبہ کر رہے کہ سرکاری سطح پر نقصان کا تخمینہ لگا کر معاوضہ بھی فراہم کیا جائے۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے گلزار ہاؤس میں اتوار کی صبح ایک عمارت میں خوفناک بھڑک اٹھی آگ، جس کے نتیجے میں 7 افراد جھلس کر مر گئے اور 10 افراد دم گھٹنے سے مر گئے۔ آگ عمارت کے نچلے حصے میں واقع زیورات کی دکانوں سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 منزلہ عمارت کی بالائی منزلوں تک پھیل گئی۔ زیورات کی دکانوں میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، تاہم بالائی منزلوں پر کچھ خاندان رہائش پذیر تھے۔ اطلاع ملنے پر مغل پورہ اور گولی گوڑا فائر اسٹیشن سے فائر بریگیڈ فوری طور پر موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی گئی۔ فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے عمارت میں پھنسے 5 افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔ آگ بجھانے کے دوران ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عمارت تک پہنچنے کا کوئی مناسب راستہ موجود نہیں تھا، جس کے باعث عہدیداروں کو قریبی عمارتوں پر چڑھ کر آگ بجھانے کی کوشش کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ علاقے میں آگ لگنے کا واقعہ سنتے ہی مقامی چار مینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی کے علاوہ GHMC میئر گدوال وجے لکشمی اور منسٹر پونم پربھاکر اور کانگریس لیڈر انل کمار یادو موقع پر پہنچ گئے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے گلزار ہاؤس میں عمارت میں پیش آتش زدگی کے واقعے میں 17 افراد کی موت اب تک ہو چکی ہے۔ صبح پیش آئے اس واقعے میں 7 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے تھے اور باقی 10 افراد کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی۔ مہلوکین میں 2 چھوٹے بچے اور 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ کئی افراد کو عثمانیہ اسپتال اور دیگر پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران کئی افراد کی موت ہو گئی، جبکہ بعض موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے شبہ ظاہر کیا کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ مہلوکین کی شناخت راجندر کمار 66 سال، ابھیشیک موڈی 30 سال، سمترا 65 سال، مینی بائی 72 سال، آروشی جین 17 سال، شیتل جین 37 سال، ارراج 2 سال، ہرشالی گپتا 7 سال، رجنی اگروال، انیا موڈی، پنکج موڈی، ورشا موڈی، ادتیہ موڈی، رشب پرتم اگروال، پرانشو اگروال۔ اسی دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس سانحہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس واقعے کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیا اور زخمیوں کے بہتر سے بہتر علاج کی فوری ہدایت بھی دی تاکہ متاثرین کو ہر ممکن طبی امداد مل سکے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے متاثرہ مقام کا دورہ کیا اور وہاں موجود عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لے کر حکومت کی جانب سے ممکنہ مدد کی یقین دہانی بھی کروائی۔ السلام علیکم، میرا نام زاہد ہے۔ ہم لوگ چار مینار پہ نماز پڑھ لے کے نمیرا ہوٹل میں چائے پی لے کے ہم لوگ دوستان نکلے تھے، 4-5 دوستان ایسا جا رہے تھے، یہاں پہ دھواں جا رہا تھا دبائی کے، تو ہم لوگ آگے ٹھہرے تو دو لیڈیز تراوت آئے تھا، بھیا ہمارا فیملی اندر ایسا ہو لوگ بولے بچے بولتے میڈم دروازہ کدھر ہے، یہ بولے ہو گیا۔ ہم لوگ 4-5 دوست الحمد للہ گھس گئے اندر، تو کیا کر کے پھر اندر کے بعد میں ایک دیوال ہے
वो दीवार भी तोड़े हम लोग, पूरे मिलके सब बड़ा बड़ा के दीवार तोड़ते। हुकूमत भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी, परिषद भी आ गया था, पूरे आगे थे। बस इतना अफसोस है कि हम लोग उन लोगों को बचा नहीं सके और धुआं बहुत था। हम लोग भी जान की फिक्र करें हम लोग की, एक इंसानियत के नाते हम लोग घुस गए अंदर। वो सिटी हमारा पुराना है भाई, एक दूसरे की जान हमारा से कीमती है। बस एक रूम में 7 जने थे, उसमें से बच्चे हैं 4, बाकी के ओल्ड है। उन लोग भी पूरे ऐसा एक फैमिली, एक बच्चा लोग को पकड़ के पूरे जल गए थे उन लोग, पूरा डेट हो गया साहब। हम लोग तो ऊपर से 7 को निकाला, नीचे से 6 को निकाला, 13 लोग हम लोग निकाले। वो तो फिर हॉस्पिटल में गए थे, पूरे डेट हो गया के सुना दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में आतिशज़दगी के 3 वाक़यात पेश आ चुके हैं। ताज़ा तरीन वाक़या 18 मई को चरलापल्ली मेडचल मलकाजगिरी जिले के एक पेट्रोल टैंकर यार्ड में पेश आया, जिससे मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। यह वाक़या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक तनसीब के करीब उस वक्त पेश आया जब एक पेट्रोल टैंकर में आग लग गई। मुबैना तौर पर तकनीकी खराबी की वजह से आग लगने की वजह से मुमकिन तौर पर गाड़ी ड्राइवर ने होशियारी के साथ फौरी तौर पर गाड़ी को रोक दिया। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर जायवाखू पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इससे कबल हैदराबाद के मलारदेवपल्ली की मुगल कॉलोनी में एक इमारत में आग भड़क उठी। ये वाक़या, जिसका शुबा है कि G+3 फ्लोर प्लस पेंट हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाकया पेश आया। आग की वजह से हंगामी कॉल मौसूल होने पर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा फायर स्टेशन अमले के साथ पानी का टेंडर इस मकाम पर रवाना किया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इसी तरह का एक और वाकया चार मीनार के करीब गुलजार हाउस में सुबह एक जबरदस्त आग लग गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 10 दीगर जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक श्री कृष्ण पर्ल्स इमारत में सुबह 6 बजे के करीब आग भड़क उठी और कसीर धुआं जल्दी अहाते में भर गया, जिससे कई लोग बेहोश हो गए। इस वक्त तकरीबन 30 अफराद अंदर मौजूद थे, जिनमें मोतियों के ताजर का खानदान और उसके मुलाजमीन शामिल थे। जख्मियों को उस्मानिया, यशोदा, मलकपेट, अपोलो DRDO और अपोलो हैदरगुड़ा अस्पतालों में दाखिल कराया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक इमारत में आतिशज़द के हादसे में गम का इजहार किया, जिसमें 17 अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। हैदराबाद तेलंगाना में आतिशज़दगी के सानहे की वजह से जानी नुकसान पर गहरा गम। उन लोगों से ताज़ियत जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। जख्मियों को जल्द सेहतयाब करें। हर मरने वाले को लवाहिकीन को PMNRF की तरफ से 2 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया दी जाएगी। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है। चार मीनार के करीब गुलजार हाउस में एक इमारत में जबरदस्त आग लग गई और 2 बच्चों समेत कम अज कम 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मरकजी वजीर कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी, जिन्होंने जाए हादसे का दौरा किया, मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि वो वज़ीर आज़म से बात करेंगे और उनसे मुतासरीन के अहले खानों को माली इमदाद का ऐलान करने की दरख्वास्त कर रहे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने भी आतिशज़दगी के हादसे पर अफसोस का इजहार किया। गुलजार हाउस हैदराबाद में होने वाली अलमनाक आतिशज़दगी में मासूम जानों की ज़िया पर गहरा दुख का इजहार किया गया। सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत पेश की गई। पोस्ट किए गए जख्मी के बारे में ताज़ियत पेश करते हुए उनकी सेहतयाबी के लिए चंद्रबाबू नायडू ने दुआ की। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने भी आतिशज़दगी के सानहा पर सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा, इंतहाई सदमे और दर्दनाक पुराने शहर में गुलजार हाउस में आतिशज़दगी के सानहे की सामने आने वाली तफसीलात बहुत अफसोसनाक। सानहा में जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उम्मीद और दुआ है कि इस आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। BRS की टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। देखिए, और उन्होंने कहा है कि इस ज़िम्मन में कोई भी मदद हो तो BRS उनके लिए खड़ी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गुलजार हाउस में एक दर्दनाक वाकया पेश आया। ये खानदान 125 साल से इस इलाके में मुकीम था। मरने वाले तमाम 17 अफराद खानदान के करीबी थे। बड़े अफसोस की बात है। मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार के करीब गुलजार हाउस इलाके में तेलंगाना डिजास्टर रिस्पांस और फायर सर्विसेज के DG Y नागी रेड्डी से बातचीत की, जहाँ एक मकान में आग लगने से 17 लोगों की मौत वाक़ई हो गई।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह में गुलजार हाउस के पास एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक घर के एक परिवार के खानदान के 17 लोगों की मौत हुई है और ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो पहले यहाँ पर आए, मदद करने की कोशिश की, मगर अफसोस के साथ ये खबर हमको मालूम हुई कि 17 लोगों की मौत हुई है। मैं फायर सर्विसेज के आला अहदेदार से बात भी किया, उनका बोलना ये है कि बहुत से लोगों की, ज़्यादातर लोगों की मौत जो है एसिफिक्शन से हुई, वो धुएं की वजह से, तो बड़ी तकलीफदेह बात है। और अभी उस्मानिया हॉस्पिटल के मॉर्चरी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर, हमारे यहाँ के लोकल एमएलए जुल्फ़िकार अली साहब वहाँ पर है और जल्द से जल्द कोशिश करके पीएमआर कराकर रिलेटिव्स को उनकी डेड बॉडी हवाले कर रहे हैं। और आपको जानना है कि ये जो फैमिली है ये पिछले 100 साल से यहाँ पर रह रही है, मोर देन 100 ईयर्स से यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है, मैं अपनी तरफ से उनको ताज़ियत देता हूँ और यही बस कहना है। फैमिली के पास गया सर, अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ एमएलए साहब है, जुल्फ़िकार साहब है, डिप्टी सीएम भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, वहाँ पे कंसर्न मिनिस्टर भी है पूनम साहब, तो सुबह से सब लोग है, मैं भी जा रहा हूँ। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अचानक कशीदगी बढ़ गई थी और फिर 6 मई की देर शब हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दहशतगर्दों के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपनी ताकत दिखा दी थी। इस हमले के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमले की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन हिंदुस्तानी डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस को हदफ बनाया था। इस हमले में पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ था, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। अब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया है कि हिंदुस्तानी हमले में मुल्क को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही, जिसमें वो नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकानों के तबाह होने का तस्करा कर रहे। वीडियो में वो इस बात को कबूल करते दिखाई दे रहे कि हिंदुस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस समेत दीगर ठिकानों को हदफ बनाया था। शहबाज शरीफ कहते हैं कि फौजी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें इस हमले की इत्तला दी थी। एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन। कॉलेज के एक तालिबे इल्म को जासूसी और पाकिस्तान को हसास मालूमात फराहम करने की शुबा में हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। देविंदर सिंह को सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तानी फौजी अड्डों और कौमी सलामती से मुतल्लिक हसास मुकामात की तस्वीर और वीडियोस पाकिस्तान को भेजता हुआ पाया गया। हरियाणा में गुज़श्ता 3 दिनों में जासूसी के इल्जाम में ये दूसरी गिरफ्तारी है, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटियाला के खालिसा कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के 25 साला तालिबे इल्म देविंदर सिंह गढ़लोन को कोल केथल से अपने फेसबुक अकाउंट पर पिस्तौल और बंदूक की तस्वीर अपलोड करने पर गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि वो गुज़श्ता साल नवंबर में करतारपुर राहदारी के जरिए पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान के साथ हसास मालूमात का तबादला कर रहा था। पड़ोसी मुल्क के इंटेलिजेंस अफसरान ने मुबैना तौर पर ढलन को फंसाने के लिए काफी रकम खर्च की थी। कैथल की पुलिस सुपरिटेंडेंट आस्था मोदी ने कहा है कि
मास्टर्स के पहले साल के तालिब इल्म ने पटियाला फौजी छावनी की तस्वीर भी पाकिस्तानी अफसरान के साथ शेयर की। इसका फ़ोन जब्त करके फॉरेंसिक तहकीकात के लिए भेज दिया गया। मजीद ये कि उसके और पाकिस्तान अफसरान के दरमियान मिनी ट्रायल का पता लगाने के लिए इसके बैंक अकाउंट की छानबीन की जा रही। ढलोन की गिरफ्तारी 24 साला नुमान इलाही को पानीपत में इसी तरह के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किए जाने के चंद दिन बाद हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुबह वसते और शुमाली कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे। हुकाम ने बताया कि ये छापे खित्ते में दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ मुश्तबा सरगर्मियों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के सिलसिले में अंजाम दी जा रही। उन्होंने बताया कि ये तलाशी कार्रवाइयाँ शुमाली कश्मीर के सोपुर, बारामूला, हिंदवाड़ा और वसते कश्मीर के गांदरबल और श्रीनगर अजला में अंजाम दी जा रही हैं। हुजाज की खिदमत के सिलसिले की कड़ी में एक और इजाफा। सऊदी वजारत सेहत ने आज़मीन हज को तिब्बी आगाही की फराहमी के लिए उर्दू समेत मुतअद्दिद जुबानों में हेल्थ किट का एहतमाम किया। इसमें मौसमी हालात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के तरीक़ों से आगाह किया। सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी की जाने वाली सेहत किट में हज सीजन के दौरान आज़मीन को गर्मी से बचाव के लिए खसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। जारी हिदायत में कहा गया कि आज़मीन खास तौर पर अयाम हज में बराह रास्त धूप से बचें, खैमों से बाहर निकलते वक्त छतरी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, जिसके लिए पानी का इस्तेमाल मुनासिब मकदार में करें। सेहत किट मुतअद्दिद जुबानों में तैयार की गई है, जिनमें अरबी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रांसी, फारसी, इंडोनेशी, तुर्की और मलावी शामिल हैं। किट का मकसद मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आज़मीन हज को ज्यादा से ज्यादा आगाही फराहम करना है, ताकि वो मौसम के हवाले से खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने सफर हज को महफूज बनाएं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।